Good morning. It's really a pleasure to host you on this platform. मेरी पहली बार आपसे मुलाकात हो रही है और मैं जानना चाहूंगा आपकी बुक के बारे में, जो लास्ट जी, जी। एग्जोडस आपने कश्मीरी पंडित के एग्जोडस के बारे में लिखी है। तो इट इज बेसिकली योर शो। आप हमें बताएं हिंदी और इंग्लिश में कि आफ्टर ऑल यू आर ए कश्मीरी पंडित, यू नो अबाउट द वैली, यू नो अबाउट द कम्युनिटी। वो किताब आपने लिखी है तो ऑब्वियसली आपने रिसर्च भी की होगी। तो मेरे दर्शक और मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप ने क्या आपको मोटिवेट किया जिसकी वजह से आपने किताब लिखी, और कश्मीरी सिचुएशन उस टाइम पे 90s में और उसके बाद जैसे जैसे इवॉल्व हुई या उससे पहले। इट इज बेसिकली योर फ्लो, whatever you wish Yes. to tell us about your community, your book. Over to you, ma'am. Thank you, sir. Thank you so much. This exodus is not something that happened overnight. It had been in the making for quite some time. And the most important, participant, the people who were more, interested in creating disturbance in the valley, as we know, is Pakistan. Pakistan had been sort of remember 65 war, then 71 war. They could not get over it. A truncated Pakistan could not accept the fact that it had been divided into two parts, which right now what we need to know is uh, in 65 also there were infiltrators. I was a young girl then, and some people had, entered the valley colonies. बट एट दैट टाइम ऑल्सो क्या हुआ कि जो वहां के मुस्लिम्स भी थे, उन्होंने उनका साथ नहीं दिया, एंड दे वर सिक्योरिटी फोर्सेस वर succeeded in flushing out those infiltrators. It was in 65, 71 also it happened. It was then Pakistan realized that this is something, this kind of war they cannot win, so they have to use a different kind of strategy. So a plan was uh, you know uh, made. And what was the plan? The plan was to uh, उसको क्या बताएंगे, brain wash, to Okay. infiltrate in, not through, infiltrate into India, but not the way they had been doing it. They had to work on people and on people's psyche. Okay. तो जो बेचारे, जो थोड़े बहुत, जो जिसे कहेंगे लोअर स्ट्रेट ऑफ सोसाइटी, स्पेशली स्टार्टेड विद देम. They Okay. recruited them. Local support is very important for such things. They recruited them, uh, brainwashed them. Madrasas, mosques, those were the places where they started. They started from. और फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने, मतलब, they succeeded to a lot, to quite some extent, कि जो कश्मीरी यंग बॉयज हैं, इनको ये दिखाना है कि हिंदुस्तान तुमको हिंदू बनाकर ही छोड़ेगा. हिंदुस्तान, हाँ, हिंदुस्तान, मतलब इस्लाम को आहिस्ता आहिस्ता वैली से दूर करेगा, इस्लाम मुस्लिम्स को. सो दे प्लान दिस स्ट्रेटजी. तो अब बच्चे होते हैं, दे आर प्रोन टू सच थिंग्स, तो उनको आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि जो हमारी जनरेशन के लोग थे, दे वर स्टिल वेरी टॉलरेंट, बट जो ये न्यू ब्रीड आ गई ना, इट, एंड दे वर टोल्ड that pandits have, they have been the oppressors. They along with Maharaja, they have been, suppressing you. They are not giving you liberty. They are not allowing you the freedom that you are supposed to get, which was all hoax. But then अब छोटे, मतलब young जो लोग होते हैं, उनके साथ तो ऐसे, उनके साथ तो you can succeed to some extent. तो ये आहिस्ता आहिस्ता होता गया, but it was very subtle. You couldn't make out what was happening. जो अंडर करंट्स थी वो हमें समझ नहीं आ रही थी. हमें तो तब भी नहीं समझ आई जब 99 का वो हुआ. तो 1986 में ऐसा हुआ कि अनंतनाग में one young man came. He went to study abroad. He was a young Muslim. He went to study abroad. वही उसने अपना कुछ, अपने धर्म का बहुत कुछ किया. And then suddenly when he came back to Valley, he found that Muslims were not the kind of people they were supposed to be. जैसे aggression वगैरह उनमें नहीं था. They were more
like Hindus only. So he started working on them, and the first thing that he did was he told a very huge gathering, उसमें उनको बताया गया कि ये 1986 में हुआ है कि तुम्हारे जो तुम्हारे कुछ कुछ जो धार्मिक स्थल हैं, ये पहले तुम्हारे थे, हमारे थे, उसके बाद ये पंडितों ने उन पर कब्जा कर लिया है, which was not true. Even the Muslims, local Muslims knew that it was not true, क्योंकि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि हिंदुओं ने कब्जा किया हो मुस्लिम इनके जो जो भी धार्मिक स्थल हैं. एंड ही रियली वर्कड ऑन देम. और उसके बाद जो उसने जो लोगों में जो ये भ्रम फैलाया, तो लोग सचमुच मान गए. देयर वर पीपल हु डिडंट बिलीव इट, बट देयर वर सम हु वांटेड. वो इसमें तो बहुत कुछ पॉलिटिक्स आ जाता है ना. तो दे स्टार्टेड प्रोटेस्ट्स एंड ऑल. उसमें एक मुस्लिम लड़का मारा गया. ओके ओके. तो उसमें उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने कहा कि ये उस आदमी ने, उसका काम काजी था, उसने कहा कि ये जो जगह है जहाँ पे ये लड़का मारा गया है, इससे हम एक स्मारक बनाएंगे. सो इट वाज कॉल्ड शहीदी मस्जिद. वी विल हैव टू इरेक्ट ए मस्जिद, मॉस्क ओवर दिस इन दिस प्लेस. उससे क्या हुआ कि जो पंडितों के घर दुकानें वो उनको मतलब दे हैड टू बी dismantled to make place for this mosque. उसमें, and that is when Hindu houses were vandalized, they were burnt, people were harassed, बहुत कुछ हुआ. It अच्छा, was actually the ये beginning of. एक्चुअली मतलब अगर आप देखो तो जो ओवर्ट फॉर्म जो मिलिटेंसी की आई या जो पब्लिक एंगर एक तरीके से उसने जो बाहर से आया उसने चैनलाइज किया कश्मीरी पंडित्स के अगेंस्ट में. तो ये जो इंडिविजुअल है इसको ऑब्वियसली पॉलिटिकल सपोर्ट भी कुछ मिला होगा, एडमिनिस्ट्रेशन भी बिल्कुल, कुछ ढीला ढाला रहा होगा. and बिल्कुल बिल्कुल as usual, ओके. politicians from all hues jumped into the fray and they supported them. And in the process क्या हुआ कि पंडित्स को वो जगहें छोड़नी पड़ी जो एंड उनके दैट जो वाज इन रिलीजियस प्लेसेस थे. अनंतनाग की बात है, ये है ना, ये अनंतनाग में हुआ अनंतनाग की बात है. और यहीं उस से शुरू वक्त हुआ. भी वो यहीं से एक्चुअली बहुत पहले से शुरू हो रहा था, पर उस बार मतलब इट वाज वेरी ग्लेयरिंग दैट दिस थिंग इज हैपनिंग, which as children, as young men we hadn't seen. ओके. इतनी भी एनिमोसिटी नहीं थी टू बोथ कम्युनिटीज में. बट ये जो रेडिकलाइज्ड मुस्लिम यूथ थे, उनके कारण ये ज्यादा एग्जैजरेट हो गया. तो उस वक्त भी बहुत सारे लोग उस वक्त निकल गए थे, बिकॉज इन ऐसे मतलब नॉट ओपनली बट सटली people were advised to look for jobs and professional colleges outside कश्मीर. ओके. हिंदुओं को ऐसे मतलब हिंट दिया जा रहा था. हाँ, मुझे जो पता चला है, मैं एक्चुअली कई कश्मीरियों से कांटेक्ट में रहता हूँ, तो मुझे हाँ जो हाँ. पता चला उसमें ये कि जो अब्दुल्ला फैमिली थी या ये लोग बाकी जो पॉलिटिशियंस थे, ये बेसिकली हिंदूज को एक तरीके से प्रॉम्प्ट कर रहे थे उस टाइम पे कि तुम लोग यहाँ से निकल जाओ. अब निकलने का मतलब तो ये है कि अपनी जमीन गई, अपनी प्रॉपर्टी गई, और साइमल्टेनियसली वो ये कह रहे थे कि भाई निकल जाओगे तो अच्छा रहेगा. इट्स लाइक एक तरह से एडवाइस दे रहे हैं, एक तरीके से थ्रेटन कर रहे हैं, और एज ए इट पॉलिटिशियंस. वाज हाँ, यस. मतलब और खुद की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो चाहे कुछ हो. भाई हमने तो आपको बता दिया था. बिल्कुल. तो It was a combination of both things, ओके. advice and threatening. और एक और रीजन था कि फिर हमारे लिए नौकरी मिलना मुश्किल हो गया था. पोजीशन होल्डर्स, मेरिट होल्डर्स, कोई, आई मीन देयर वाज नो गारंटी दैट अ बॉय who comes, who get first position in जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स है, कि उसको कहीं पे सीट मिलेगी. देयर वाज नो गारंटी. और जॉब की तो मत ही पूछिए आप. और इन केस इवन इफ वी गॉट जॉब्स, वो हमें बहुत इंटीरियर में भेजा जाता था, ओके. सो दैट वी वुड गिव अप एंड कम बैक. ऐसा मतलब इन्होंने एटमॉस्फेयर बनाया. और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता थिंग्स केप्ट ऑन हैपनिंग. It was simmering from inside. It's not that it happened overnight. पाकिस्तान की स्ट्रेटजी यही थी कि आप जो हैं कश्मीरी यूथ, दे शुड गो टू पीओके, जहाँ पे उन्होंने ये टेररिस्ट कैंप्स बनाए थे,
and then they should be given arms and ammunitions. और उनका यही प्लान था कि जब ये सब रेडी होगा, ये जिया उल हक के टाइम में शुरू हुआ था, जिया उल हक के, जी जी। तो when they would be ready, then they will have they will start executing the plan. पर ऐसा हो गया कि जिया उल हक तो मारा गया, और ये जो अपने लड़के गए थे वहां से, जो आए थे, जो अपने AK-47, they would be displaying them as trophies. They didn't know what to do with their arms. ओके So indiscriminate shooting शुरू हो गया. ओके इनका प्लान था, एक्चुअली क्या प्लान था कि आपके अभी जो 1990 का जो 26 जनवरी होगा, उस दिन वो लोग अनाउंस करेंगे दैट कश्मीर हैज बिकम अ separate state. It has been liberated from the clutches of India, ओके and so उस दिन they will take over TV, radio, this, that, and on the 18th of January, Farooq Abdullah resigned. सो दैट वाज और विच ईयर, यू मीन टू से दैट वाज विच ईयर? 1990 90 में। ओके, तो फारूक हाँ, अब्दुल्ला ने रिजाइन कर दिया। और जगमोहन को उन्होंने जगमोहन को लाया एज लेफ्टिनेंट गवर्नर, एज गवर्नर, और इन्होंने और इसको तो दे वर नॉट very exactly on good terms with each other, and he was looking for an excuse actually, Farooq Abdullah. तो उसने रिजाइन किया और वो चला गया. हाँ, He वो तो left the country. इन एनी Everybody केस वो knows तो about. रहता ही लंदन में था, यूके में रहता था वो हाँ, मोरलेस, जब वो चीफ मिनिस्टर था तब भी। अभी ओके, he was a proxy chief minister. तो मतलब एक तरीके से अगर जगमोहन जी उस टाइम पे ना आते तो यू मीन टू से कि दे वर प्लानिंग टू लॉन्च सम कू एंड एवरीथिंग जस्ट लाइक Yes, दैट? yes, it was. Yes, it was. It's true. You can find it out. It's true. But जैसे ही somehow this, when Jagmohan took over, he was a very efficient administrator. Even ओके the Muslims really liked him. तो उसको जब मालूम पड़ गया कि ये ऐसे हो रहा है, somehow it leaked. There are people who can, they have their own people also in these places. तो उसने क्या, रातों रात उसने जो सारे बड़े बड़े ये सरगना थे इनके, उनको अरेस्ट करा दिया. तो सारा प्लान फेल हो गया ओके। जो इनका था. तो 19 जनवरी की रात को एक साथ मिडनाइट सारे लाउड स्पीकर मस्जिदों में, जितनी मस्जिदें थी सबके लाउड स्पीकर बजने शुरू हो गए. पीपल केम आउट. इट वाज अ सी ऑफ ह्यूमैनिटी, ओके and they started shouting slogans, anti-India, pro-Pakistan, pro-Azadi, and threatening बट्टास, जिन्हें हम कश्मीरी पंडित्स को बट कहते हैं. ओके ओके और ये इससे मस्जिद के जो लाउड स्पीकर थे, वहां से लोगों को बताया जा रहा था, कश्मीरी पंडित्स को, बटाओ, रेलियो सेलियो या गलियो, या तो मिल जाओ, मतलब कन्वर्ट हो जाओ, या तो मर जाओ, नहीं तो भाग जाओ. और ये नारा कोई रीसेंट नारा नहीं है, था सिकंदर बुत शिकन के वक्त में ये कॉइन हुआ था ये. ओके तो जब और उनके जो खिड़कियां दरवाजे धड़ धड़ कराने खटखटाने लगे, हैरस के बेचारे पंडित तो दुबक गए थे घरों में. दे डिड नॉट डेयर टू मूव. They did not dare, and they were calling them out, come out on the roads. Matlab they wanted them to join. So why would they join? That was just the beginning. इससे पहले भी कुछ जो prominent जो people लोग थे, they started shooting them, killing them one by one. उसमें सबसे पहले टिकलाल टपलू का नाम आता है. He was a lawyer and a known जनसंघी. तो जब and he was not the kind to एक जनसंघी का मतलब ये तो नहीं है कि वो एंटी मुस्लिम हो. तो वो उनके लिए भी केस लड़ता था, इन मुसलमानों के लिए भी केस लड़ता था. एंड दीज सेम मुस्लिम्स, दे थ्रू स्टोन्स ऑन हिज, ये जब उनका फ्यूनरल प्रोसेशन जा रहा था, दीज सेम पीपल. और एक वो जो थे नीलकंठ गंजू, द वन हु हैड सेंटेंस्ड मकबूल बट, he was ही वाज ए killed जज। right in the judge, right in the in a place which is क्या बोलेंगे, hub
and then they were asked, people were asked not to touch his body. ये इनका बहुत ही ज्यादा मतलब एक ये बड़ा फेवरेट डायलॉग होता था। लेकिन मैम एक बात बताओ मुझे, कहीं भी जब कम्युनिटी के ऊपर इस तरह के थ्रेटनिंग पोस्चर्स आते हैं, मैं मानता हूं कि कश्मीरी पंडित वहां पे माइनॉरिटी में थे और बेसिकली एडुकेटेड कम्युनिटी है, देवर इन गवर्नमेंट जॉब्स, देवर इनटू सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस, मगर कभी कम्युनिटी ने उस तरीके से अपने आप को डिफेंस के लिए ऑर्गेनाइज नहीं किया, और प्रॉब्ली दे वर नॉट वेरी कीन टू फाइट, और प्रॉब्ली दे थॉट के और कोई रास्ता निकल जाएगा। नहीं, एक तो बहुत ही जिसे कहेंगे पॉइंट, जैसे कहेंगे 2% ऑफ द पॉपुलेशन कश्मीरी पंडित्स थे। ओवर द इयर्स दे स्टार्टेड डिविनलिंग, नंबर्स स्टार्टेड डिविनलिंग टिल दे रीच दिस। तो उसमें उनके एक और प्रॉब्लम है कश्मीरी पंडित्स में, दे आर नॉट वेरी यूनाइटेड। इट दे कुड नॉट सक्सीड इन मेकिंग ए कोहेसिव सोसाइटी। ओके। और दे वर नॉट इनटू पिकिंग अप आर्म्स एंड ऑल। इतना कुछ हुआ उनके साथ। वन हैज टू सी इट टू बिलीव इट। जो देखिए आप, जो कश्मीर फाइल्स में आपको दिखाया गया है, दैट इज नॉट इवन 1% ऑफ द थिंग्स। जो बाद में जब वहां से निकल के जो टेंट्स में रह रहे थे, दोज पीपल, यू जस्ट कुडंट बिलीव। यस यस। somebody would be hard hearted not to cry। ऐसा उनका ऐसा उनकी हालत हो गई। मगर उसके बावजूद भी, in spite of all the difficulties that they faced, they never thought of picking up the gun. They only took up pen and studied and studied and slogged till they succeeded। नहीं, देयर इज नो डाउट। देखो, मैंने काफी कश्मीरी पंडितों को मैं बहुत पहले से जानता हूँ, जब मैं यूनिवर्सिटी में था तब Right, से मैं उनको जानता हूँ। दे आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट पीपल, एंड देयर इज नो डाउट कि इस तरह की जो कम्युनिटी होती है, इवन इफ दे आर नॉट यूनाइटेड, लेट अस टेक इट दैट वे, दैट दे आर नॉट यूनाइटेड, वो फ्रेगमेंटेड है, कोई दिल्ली में है, कोई बॉम्बे में है, कोई न्यूयॉर्क में है, उसके बावजूद right। भी जो ऐसी कम्युनिटी होगी, अगर आप उस नाम से देखो, तो वो हमेशा सक्सेसफुल होगी लॉन्ग रन में। मतलब इसमें तो किसी को कोई शक होना ही नहीं चाहिए। आप हम्म। देखो कश्मीर में जो उनके साथ हुआ और बारंबार हुआ, उसके बावजूद भी ये हाँ, कम्युनिटी कभी पीछे नहीं हटी। आप देखो, अ, हर जगह आपको उनके नाम मिलेंगे। तो हर ये जगह। तो बिल्कुल, ये तो फैक्ट बात है। और जो लोग यूजुअली पढ़े लिखे होते हैं, अवेकन्ड होते हैं, एनलाइटन्ड होते हैं, तो उसमें होता क्या है कि वो अपने को कभी यूनाइटेड नहीं कर पाते, क्योंकि इंटेलेक्चुअल्स कभी यूनाइट हो ही नहीं सकते। जो मिलिटेंट है वो यूनाइट हो सकता है, बिकॉज उसको तो कुछ हाँ, नजर ही हाँ। नहीं आ रहा है।